Okay, so equations it is. Why do we study equation? What are the things in equations? Unknown factor को find out करना है, इसलिए we study equations. Algebra का core part है equations. Now, topic to cover in our equation is linear equation, quadratic equation, cubic, and examples. These are the three concepts and one example that we are going to cover up in the lecture in this equation series. So let's just move on to the very first topic that we are going to understand in equations is linear equations. So basically now अब आपको यहाँ पे देख के पता चल रहा होगा the equation chapter is divided in let me just take some shapes. Okay, yes. Oh, इतना बड़ा हो जाता है, क्या पता इसको क्या हो जाता है एकदम से. The equations are divided into three categories. One is linear, equations. Second is quadratic, and third is cubic equations. ये स्कूल में पढ़ा रहेगा आप लोग ने. ये दो अपने स्कूल में पढ़ा रहेगा. ओके, एंड ये दो लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, और क्यूबिक ये आपके लिए नया रहेगा मे बी. सो नेवरदलेस बट लीनियर और क्वाड्रेटिक का जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है स्कूल में, दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज टुडे ओवर हियर ऑल्सो. So the linear equations and quadratic equations and cubic equations that we are going to study in equation chapter. So यहाँ पे देखिए अभी आपको पता चल गया है कि equation is been divided into three parts, and उसमें से the very first topic that we are going to start is linear equations. So linear equations को पढ़ने के पहले there are few quantities or terms that you need to understand before starting for the linear equations. What are variables and then equations? Okay. What are variables और unknown? जैसे मैंने बोला था कि वो unknown को ही variable बोला जाता है, जो मैंने वहां पे ही बोला था पिछले सेशन में, वो ये सब यहाँ पे लिखा है. In an equation, the letter whose numerical value is oth is called unknown quantities or simply unknown और variable. एक कोई लेटर की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, उसको बोला जाता है वेरिएबल या तो फिर अननोन. The variable usually denoted by the last letter of the alphabet. Last letter यानी क्या? A, B, C, D और X, Y, ये Z. ये लास्ट लेटर्स से डिनोट किया जाता है, etc. Whereas the first letters of the alphabets, namely A, B, C, usually denote known numbers. जैसे मैंने तुमको कहा था क्वांटिटीज को डिनोट करने के लिए A, B, C, not capital but small. X, Y and Z. X अच्छे से लिखेंगे, ऐसा भी लिखते हैं, कोई लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसे डिपेंड्स, बट अल्टीमेटली वो दिखा ऐसे ही जाता है, वो मतलब होता है ऐसा ही है वो कि एक कर्व लाइन होती है. ओके, नॉट लाइक दिस. ऐसा होता है. सो अल्टीमेटली यू कैन सी ये ऐसा ही फॉर्म में आ रहा है. सो एक्स का ये होता है एक्स, स्मॉल एक्स जिसको हम बोलेंगे, वाई एंड जेड ऐसा भी होता है. कोई लोग वो कैसे निकालते हैं, ये ऐसे भी निकालते हैं जेड, स्मॉल जेड को, और मैं ऑफेंटली कभी कभी ऐसे निकालता हूँ जेड. ओके, सो डिपेंड, स्मॉल जेड के लिए ऐसे निकालता हूँ मैं जी. तो व्हाट आर वेरिएबल्स? एक अननोन क्वांटिटीज, एक लेटर जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होल्ड होती है, that is what variable is, और वो चेंज होती रहती है throughout the period. And what equations are? When two algebraic expressions are connected by the sign of equality. Okay, very important point over here. Sign of equality, they form an equation. Two algebraic expression, मैंने कहा था तुमको x plus 2 is an expression and single 5 is an expression. When they are connected together with this symbol, gives us equation. And this over here is our variable.
variable. Getting the point? Identity. What identity is? When two sides of an equation are equal for all values of variable involved. हर सारे जितने भी variables involved रहेंगे एक equation में, it is possible for me to write it in this way, is equal to 3. Now ये possible क्या है? ये तीनों की value 1 हो. Possible क्या है? 2 1 0 हो, 0 1 2 हो, 1 0 2 हो, जो भी conditions आएंगी, जो भी conditions, जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व रहेंगे उसकी बात कर रहे हो लोग. देन द इक्वेशन नोन एज आइडेंटिकल इक्वेशन. ओके, यहाँ पे सिंबल में भूल गया देना, यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे सिंबल, प्लस साइन है. अब देखो उन्होंने क्या बोला है. व्हेन टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशंस आर इक्वल, व्हेन टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशंस आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व, देन द इक्वेशंस आर आइडेंटिकल इक्वेशंस और सिंपली आइडेंटिटी. जैसे क्या? इफ आई से दैट ये दोनों एक दूसरे को आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल है क्यों? क्योंकि दे आर सिमिलर टू ईच अदर. मैं यहां पे 3 प्लग इन कर लूंगा तो व्हाट आई विल गेट इज 3 + 2 5. मतलब दोनों साइड क्या हो गया? 5 = 5. द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इज डिफरेंट बट अल्टीमेटली दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. ओके, सो यहां पे एग्जांपल देख रखा है. x + 3 होल स्क्वायर इज x² + 6x + 9. सो इफ आई plug x = 2, what I will get over here? What I will get when I put x = 2 is nothing but मैं x को 2 से रिप्लेस कर रहा हूं. So 2 + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2² + 6 × 2 + 9. सो ये हो जाएगा मेरा 5² और ये हो जाएगा मेरा 4 + 12 + 9. So 5² is 25 and over here you can see that 16 + 9 is also 25. So they are equal to each other. So whatever the value of x is, they are always going to be equal to each other. कौन? ये दोनों x² + 6x + 9 is equal to x + 3 whole square. So these are identical equations or identity. If I say they are not identical, then in such case what happens is x + 3 is equal to if they are not identical, let's just say x + y is equal to not x just okay x + 3 is equal to y + 1. Now if I consider x as 3, so it will give me 6. But what if y is our 2? मैंने तो ये बोला था ना तुमको कि एक इक्वेशन में इट इज पॉसिबल फॉर x टू बी सेम बट नॉट नेसेसरी दैट y सेम रहेगा, y डिफरेंट रहेगा, नॉट नेसेसरी. अगर y 2 रहा तो दे आर नॉट इक्वल. इट हैज टू बी 3 एल्स, और 3 भी रहा तो भी नहीं होता. इट हैज टू बी 5. अगर ये 5 आता है y, then and only then these two are equal, क्योंकि 3 + 3 6, 5 + 1 6. सो ये वो कंडीशन हो गई जहां पे द इक्वेशन आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर. तो ये ऐसा सिंबल आ जाता है. x + 3 is not equal to y + 1. x + 3 is not equal to y + 1. बट कुछ कंडीशंस में दे आर, कुछ कंडीशंस में दे आर. कौन सी कंडीशन है? एक्सेप्ट फॉर x = 3 एंड y = 5. ये कंडीशन के लिए तो भाई ये दोनों इक्वल है. ये कंडीशन के लिए तो ये इक्वल है. तो सारे वैल्यूज के लिए नहीं है तो कुछ वैल्यूज के लिए है. सारे वैल्यूज के लिए इक्वल नहीं है तो कुछ वैल्यूज के लिए भी तो इक्वल है. ऐसी वो बात थी. सो आइडेंटिकल इक्वेशंस वो होते हैं जिसमें आप दो जगह आप कुछ वैल्यू पुट अप करो तो आपको दोनों में आइडेंटिकल आंसर मिलेंगे. लेट्स जस्ट टेक कि x + 6 इज इक्वल टू x + 3. अगर ये मेरा आता है, इफ आई इनपुट x = 2, अगर मैं x = 2 पुट अप करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2. ये क्या मेरे को दे देगा 8, ये क्या मेरे को दे देगा ओनली 5. दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. सो ये आइडेंटिकल इक्वेशन नहीं हुआ, ये आइडेंटिकल इक्वेशन नहीं हुआ. ओके, अनदर एग्जांपल इज 3 times x + 4 शुड बी इक्वल टू 3x + 12. इफ नॉट देन दे आर नॉट आइडेंटिकल. अगर yes तो इट इज आइडेंटिकल. सो प्लग एनी वैल्यू फॉर x, यू विल गेट 3x + 12.
नाउ लिटरल इक्वेशन क्या होता है? अभी तक के वी हैवंट स्टार्टेड विथ लीनियर इक्वेशंस, वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वेरिएबल्स आर, व्हाट इक्वेशंस आर, जो मैंने पिछले सेशन में बोला है उसको एक बार यहाँ पे रीड कर रहे हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टू द लीनियर इक्वेशंस. What literal equation is? The equation of the type ax plus b, the equation of the type ax plus b equal to c, a not equal to 0 is called literal equation as it contains literal coefficient a, b, c, that is letter or alphabet instead of numbers. एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें ना कि सिर्फ नंबर्स हो लेकिन लेटर्स और अल्फाबेट्स हो इंस्टेड ऑफ, सॉरी, ना नंबर हो, सिर्फ नंबर ही ना हो, ऐसा नहीं, ये गलत बोला गया है वैसे सेंटेंस. एक ऐसी चीज जिसमें नंबर के एवजी, नंबर के बदले लेटर्स और अल्फाबेट्स यूज किया गया है, ऐसे इक्वेशन को बोला जाता है लिटरल इक्वेशन. मतलब यहां पे x की, y की, मतलब a, b, c और x की, इनकी वैल्यूज अलग अलग रहेगी. दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स, दे आर इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, लेटर्स और अल्फाबेट्स. ऐसे इक्वेशंस को बोला जाता है लिटरल इक्वेशंस. ऐसे इक्वेशंस को बोला जाता है लिटरल इक्वेशंस. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द लीनियर इक्वेशन. व्हाट लीनियर इक्वेशन इज? इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन इज नथिंग बट व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड विद द साइन ऑफ इक्वालिटी, उसको एक्सप्रेशन इक्वेशन बोलते हैं. सो इफ आई टेक 3 + 2 इक्वल टू 5, ये भी एक मेरा क्या हो गया? इक्वेशन ही हो गया. ओके, ये भी एक मेरा इक्वेशन है. नॉट नेसेसरीली जब x आएगा तभी इक्वेशन फॉर्म होगा. इक्वेशन तब फॉर्म होता है जब ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक दूसरे से कनेक्टेड हो. ओके, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन क्या होता है? द इक्वेशन विच व्हेन रिड्यूस्ड टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म कंटेन्स ओनली फर्स्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन और सिंपल इक्वेशन. क्या बोला गया है? अब मैं तुमको बोलता हूं, वो सुनो. एक ऐसा इक्वेशन जिसकी पावर 1 है. इंडाइसिस चैप्टर पता होगा तुमको, तो हमने वहां पे लिखा था x². ये क्या हो गया? एक ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर हो गई 2. पावर 2 हो गई यानी क्या? इंडेक्स. इसको हम इंडेक्स बोलते थे. ये क्या हो गया? उसका 2 हो गया. इसको ही बोला जाता है पावर, और पावर का ही इसके लिए दूसरा नाम भी है डिग्री. कोई एक्सप्रेशन में अगर x + 2 है तो ये हो गया मेरा लीनियर एक्सप्रेशन. ये हो गया मेरा लीनियर एक्सप्रेशन. क्यों? क्योंकि यहां पे x की डिग्री 1 है, पावर 1 है, और दूसरा मैं आपको बताता हूं वो लीनियर क्यों होता है. एक्सप्रेशन है, मेरे को इसको इक्वेशन बोलना है, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन. सो मेरा लीनियर इक्वेशन को बोलता है, दिस इज माई लीनियर इक्वेशन. It is linear equation because the degree, the highest degree of a variable is 1. Highest degree of variable is 1. उस समय पे मैं बोलता हूं कि the equation is linear equation. Now why it is called as linear equation? Because अब अगर आपको मैं एक बात बताऊं कि y is equal to x भी क्या हो गया फिर मेरा linear equation हुआ ना? क्यों? क्योंकि वहां पे x की डिग्री is 1 और y की डिग्री भी क्या है? 1 ही है. y की डिग्री भी 1 ही है. और उसको नाम लीनियर इसलिए दिया गया है कि देखो, अगर मैं इसका ग्राफ निकालू y = x का, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये स्ट्रेट लाइन बनेगा. ग्राफ कैसा बनेगा? ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ग्राफ. एग्जैक्टली नहीं बनाया वो. ये नीचे भी एक्सटेंड होता है वो ऐसा. तो ये जो है ना, ये क्या है? एक लाइन है ना. और इक्वेशन ऑफ लाइन इज नथिंग बट लीनियर इक्वेशन ऑल्सो. क्यों? क्योंकि इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू y = mx + b हो जाता है. y = mx + b हो जाता है. यहां पे देखो x की पावर क्या है? 1 है. x की पावर 1 है. और जो इक्वेशन when प्लॉटेड यानी कि ग्राफिकली प्लॉट करो, अगर आपको वो लाइन के फॉर्म में दे रहा है, such equations are known as linear equations. अगर आपको ज्योमेट्रिकल सेंस में रखना है तो ये उसका कारण है कि which when plotted will give you a line.
और अगर आपको नॉर्मली याद रखना है तो लीनियर इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस इन विच द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज 1. दोज काइंड ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज लीनियर इक्वेशंस. ये विच व्हेन रिड्यूस्ड टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म वो सब जाने दो, सिर्फ यहां पे देखो कंटेन्स ओनली फर्स्ट पावर ऑफ वेरिएबल. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. is called linear equation or simple equation. Linear equation or simple equation. There are two types of linear equations. The very first is linear equation with one variable. One variable यानी क्या हो गया, एक ही अननोन फैक्टर आ गया. मतलब जब अभी तक के जो अपन देख रहे थे ये क्या था मेरा वन वेरिएबल का. लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल. अब ये टू वेरिएबल आ गया मतलब क्या हो गया, दो अननोन फैक्टर्स आ गए. जैसे क्या x प्लस वाई इक्वल टू 3. ये हो गया मेरा अननोन इक्वेशन जिसमें देर आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स. इट इज पॉसिबल दैट x की भी वैल्यू और y की भी वैल्यू सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी. इट डजंट अफेक्ट. व्हाट अफेक्ट्स इज कि यहां पे दो अलग अलग अननोन वेरिएबल्स आ गए हैं, दो अननोन अलग अलग वेरिएबल आ गए. सो इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड पॉइंट ए एंड बी मोर प्रॉपरली. ओके, सो आज अपने सेशन में यही था कि व्हाट लीनियर इक्वेशन इज, एक उसका इंट्रोडक्शन और आगे चल के लीनियर इक्वेशंस के ऊपर और चर्चा. Okay, so what is linear equation? Variable equation in which the highest power or the degree of a variable is 1. So whenever you get only x in an equation, let it be this many numbers, it doesn't affect. It is a linear equation. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी variables की considering a as variable, सबकी power क्या है, 1 है. So these are linear equations. But कितने variables थे यहाँ पे, x, y, z, a. सो ये कितने वेरिएबल्स हो गए, लीनियर इक्वेशन विथ 4 वेरिएबल हो गया. ये 4 वेरिएबल के हो गए. अगर मेरे को 1 वेरिएबल का देखने का तो ओनली दिस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 7. 1 वैल्यू, एक ही वैल्यू होल्ड करेगा सिर्फ x, बाकी कोई होल्ड नहीं करेगा, बाकी कुछ होल्ड नहीं करेगा. इसलिए भी उसको लीनियर बोला जाता है. तीसरा कारण कि उसको लीनियर क्यों बोला जाता है, पहला तो डिग्री 1 है. दूसरा कि जब आप प्लॉट करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा. तीसरा कि जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको x के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, सिर्फ एक वैल्यू. जब भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 1 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, 100 वेरिएबल हो, जितने भी वेरिएबल रहेंगे उनकी एक ही यूनिक आंसर रहेगी, एक ही यूनिक आंसर रहेगी, एक से ज्यादा नहीं रहेगी. यहां पे आपको x के लिए दो अलग अलग आंसर नहीं मिल रहे. यहां पे आपको x के लिए सिर्फ एक ही आंसर मिल रहा है एंड दैट आंसर इज 7. क्योंकि 7 which when added to 2 will give you 9. So x has a unique answer and only one answer. इसलिए भी इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसको जब सॉल्व करते हो तो इसका जो सॉल्यूशन आता है दैट गिव्स ओनली सिंगल सॉल्यूशन. ओके, सो आगे चल के अपन लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल को अच्छे से चर्चा करेंगे. ओके, सो यस, दैट्स इट फ्रॉम मी. थैंक यू.